We were describing about the trading of the electrical power. Then we described the pool contract and bilateral contract. In case of a pool contract, the generating company sells their power to the pool company. Pool company is part of the transmission side, transport. And in addition to that, what are the method of pool company that we have described earlier? That it can be the block bid market, it can be the linear bid market, and again on the basis of single-sided and double-sided, there are other classification of the linear bid and block bid market. So in this way, power is sold by the generating company to the pool company. From the pool company, the power is again sent and distributed to the distribution company. Distribution companies can be the retailers. Distribution company can be retailers. Other than the distribution company, any customer can be the retailer also. If there is big industry, it can directly purchase the power from the generating company, so it is also called as a retailer. And whatever it is a customer or it is a distribution company, then the power is sold to the different small consumers from the distribution company. Now, in addition to the pool company, there is a bilateral contract. Bilateral contract means any generating company can sell its power to any of the distribution company or any of the retailer. Now, if the power is, and we have seen how the price is calculated, how the market price is obtained for the each megawatt of power, that we have seen in the pool company. But once power is sold, either it is through the pool company or through the bilateral company, then it is transported. Power is transported or it is sent to the transmission system, transported from one place to the another place. That is the from generating company to the power is transported from the generating company to the distribution company. Okay. So power, yes, so power is then transported. Now at what cost? Whatever the market price is there, that price is recovered from the. Now there are two things. One is the generating company. Suppose the power price comes, say for example, 2 rupees per unit, and generating company getting the 2 rupees per unit, distribution company also giving the 2 rupees. Then about the transmission prices. That is when we utilize the electric transmission system, that is the electric lines are used, so who will pay for that? So it is the transportation charges, that is again of two types, transportation charges and the unit charges. Transmission charges and billing charges. Transmission charges means if we use any generating company either through the pool or through the or from the bilateral contract. Say generating company at one place, say it is in the Gujarat and it is transmitting power to the any industry in the Haryana or any distribution company UHK to Haryana, then the charges of the wires will be taken and those are called transmission charges. So transmission charges, as you see, are those charges which are paid to the transmission licensee for the use of the transmission system. Okay, and for the transfer of the electricity, and the charges levied by the distribution company, that are called the billing charges. आपका transmission charges means the high voltage charges. Transmission system is separate and distribution system is separate. Distribution system is say UHPTNL. It is a distribution system. It is sending the power to the different consumers. So distributions are at the low voltage level. It can be of 33 kV, it can be 11 kV, it can be of 220 kV, 400 kV, 400 volt or 220 volt. So this is the voltage level. So distribution charges are separate, then the transmission charges are separate.
Now, what are the method? As you have seen, the method of calculating the price of the power. कितना मेगावाट का कितना प्राइस हो, that you have seen in the previous classes. Now, when you use the transportation, जैसे आपका क्या करते हैं, suppose you want some material to be transported from the Chandigarh to the Sonipat. Then you have to pay for the material, then you will pay for the transportation. So material, you know how to calculate, what is the value of material, how the price has calculated, that you have seen. Now the charges of transportation, there are few methods. One method is flat fee method. Flat fee method is if there are few generating company and in a small area, all can share the transmission charges equally. But that is not here enough. So there can be a postage stamp method. Another method is the postage stamp method, that irrespective of the distance traveled, that depending upon how much power is transmitted, how much power is being transmitted, say for 10 megawatt power rupees is 10 and 5 megawatt power is 10 5. So that is again another method called the postage stamp method. Then it is a megawatt mile method. In this megawatt mile method means how much transmission distance is being used. Suppose transmission distance and multiply by the megawatt power flow. आपने कितना पावर और कितनी लाइन यूज किया. Suppose the material is coming from Chandigarh to Sonipat. So what is the weight of the material? Then what is the distance covered? Similarly, what is the amount of electricity? Say it is 10 megawatt or 20 megawatt, and what is the distance covered? What is the transmission line length? 50 megawatt method. And another is the contact path method. It can be the two contact. If you purchase power from this point, then this will be price. If you purchase the power from another point, it will be price. So these are the few methods of finding the transmission prices. So now we will describe this is the just formula, that how much, what is the length multiplied by what is the length and multiplied by power transfer, and rate, with the rate decided by the transmission system. So we will describe this with the help of one example, then it will be more clear to you. Okay, we will describe it with the help of the example. How the transmission prices are being calculated by the megawatt mile method, which is being used nowadays. Let's say, for example, this is a 8-bus system. There are 8 buses. There are 1, 2, 3 generators. So in normal, suppose the bilateral contract, this contract, these are the 2 new contracts. They are not there. In the beginning, these are 2 new contracts, so these are not there. In the beginning, only the 3 generating company supplying the power to these buses, this bus and this bus. See, here are the distribution company at bus number 7. Here is another distribution company at bus number 4, and the 3 generators are transmitting the power. Now, to supply that demand, to supply the total demand at bus number 7 and at bus number 4, what will be done? How it will be decided? Depending upon the demand, how much power will be taken? How much power will be taken from here? How much power will be taken from here? How much power will be taken from here? इसका क्या criteria होगा? We perform the load flow study. Load flow study करके ही पता लगाएंगे इससे कितना पावर है. Then we can do the economic dispatch. आपने स्टार्टिंग में कर लिया कि भाई to supply this demand, we have to supply this power. Now, अब in addition, ये तो normal running condition हो गया. In addition to that, now two bilateral contracts come. कि आपका यहाँ पे एक जनरेटिंग कंपनी है, that really bilateral contract here. कि आपका है एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. Suppose this is a, for example, Gujarat, and they say, for example, this is a Faridabad. So we decide to save 300 megawatt at some bilateral contract.
इसने इसको डिसाइड किया व्हाटएवर की द रेट विल बी डिसाइडेड अमंग द टू। ये सेल करने वाला है, ये परचेज करने वाला है, आपस में उन्होंने रेट डिसाइड करी और द बेसिस ऑफ द रेट दैट 300 मेगावाट पावर टू बी सप्लाइड टू देम। अब 300 मेगावाट पावर सप्लाई करना है, तो ये ट्रांसमिशन जो सिस्टम यूज हुआ इसको कितने पैसे मिलेंगे? हाउ मच चार्ज फॉर द ट्रांसमिशन विल बी देयर, दैट मींस ओके। अच्छा, now next the second transaction is 75 megawatt. Okay, next transaction is the 75 megawatt, and they decide transaction number 2 that 75 megawatt power is sold to the distribution company at bus number 4। तो यहाँ से 75, तो इतना बात फॉलो करेगा। सपोज करिए ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, आप इतना सिंपल है 300 मेगावाट 500 कौन सी लाइन यूज करेगा? क्योंकि जितना ट्रांसमिशन लाइन यूज होगा उसके अकॉर्डिंगली इस पर चार्जेस होंगे। तो हाउ यू फाइंड? जरूरी नहीं है, देखिए 300 मेगावाट आप सोचेंगे ये पावर यहाँ गई इसमें ऐसा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 300 मेगावाट है, जब आप लोड फ्लो स्टडी करें जो पावर पहले फ्लो हो रही है ये कम हो जाए, ये आपस में कम हो जाए, ये बढ़ जाए, आप देर करनी यानी ये सप्लाई। ऐसे ही ये 75 मेगावाट जरूरी नहीं है घर से इधर भी आएगी, तो पावर किसी दूसरे पास से भी आ सकती है और कोई भी पावर कम हो सकती है, कोई भी ज़्यादा हो सकती है। इस पर डिपेंड करेगा जब आपने जो नॉर्मल रनिंग कंडीशन था इन एडिशन टू दैट व्हेन वन ट्रांजैक्शन विल कम, ये किस पे डिपेंड करेगा कितनी पावर किससे आएगी। तो नाउ अब इसके लिए हमें लोड फ्लो स्टडी से पता लगता है, लोड फ्लो स्टडी से पता लगता है पहले कितनी पावर थी। तो हमने एक जैसे सब एक जो ट्रांजैक्शन है दैट ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड जस्ट एज ए transaction will be considered just as a it is generating company and it is a distribution company। मतलब जो पहले ये 1 2 3 ये जनरेटिंग कंपनी थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थे, ये नॉर्मल स्टेज है, नॉर्मल स्टेज। इसके अलावा एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आया 300 मेगावाट, ये आया 300 मेगावाट यहाँ पर परचेज हुई। तो दिस विल बिहेव एज ए जनरेटिंग कंपनी, दिस विल बिहेव एज ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मतलब एक जनरेटर और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और आ गई, मतलब एक जनरेटिंग कंपनी आ गया, एक लोड आ गया। तो अब दोबारा से रिवाइड पावर फ्लो क्या होगा? तो रिवाइड पावर फ्लो के लिए इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द पावर फ्लो एनालिसिस, तो जो गॉस-सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड जो आपने पढ़े हैं, ओनली दो ज़्यादातर मेथड। तो पावर फ्लो एनालिसिस करने के लिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, तो ये पावर फ्लो एनालिसिस करेंगे। गॉस-सीडल एनालिसिस जो गॉस-सीडल मेथड आपने किया है, न्यूटन रैप्सन मेथड किया है, उसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो हमारा लाइन नंबर दी जाता लाइन टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 किस बस के बीच में लाइन, बस नंबर 5 से 4 के बीच में जो ये लाइन है, ये बस नंबर 7 और 6 के बीच में लाइन है, उसका रजिस्टेंस कितना, रिएक्टेंस कितना और ससेप्टेंस ये। तो these are the things required to be required in case of a load flow analysis or power flow analysis। अच्छा, इसके अलावा जो जनरेटर थे हमारे 1 2 3 जनरेटर स्टार्टिंग में, उनकी ABC APGI प्लस BPG जो उसका था, उसकी बेसिस पे जो हमारी जो जनरेटर नंबर 1 2 3 when there was no transaction T1 and T2 are not there, उसके बेसिस पे कितना लोड फ्लो हो रहा था वो जनरेटर्स की पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक डिस्प्ले नाउ नंबर गया अब these are the length of the transmission line। तो ये न्यूमेरिकल लिया, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मींस जो लाइन नंबर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस है। लाइन नंबर 1 इज 500 length of the line, it can be say for example kilometer, this is 200 kilometer, this is 300 kilometer, this is value, these are the length of the line। this is 56 line we are taking random, हमारा सिस्टम है उसकी लेंथ है। अब देखिए जब when there was no transaction number 1, जब ट्रांजेक्शन नंबर 1 नहीं था
देन देयर वाज नो ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो ट्रांजैक्शन नंबर ना तो जनरेटिंग कंपनी ट्रांजैक्शन नंबर 1 का जो ये कस्टमर था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 किसके बीच में है, नंबर किसके बीच में ट्रांजैक्शन था। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में जनरेटिंग किस एंड पर सेल हो रही है, किस एंड पर पावर परचेज हो रही है। अभी जो मैंने आपको दिखाया फिगर याद है, भूल जाती है। याद रखना थोड़ा। बस नंबर 5 और 6, 5 पे पावर सेल हो रही है, 6 पे परचेज हो रही है। तो 6 पे ये 5 और 6 के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। विदाउट दिस इसका लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे, देन इकोनॉमिक डिस्पैच करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा नजर लग जाए आएगा। तो ये आया कि पावर फ्लो इन मेगावाट। और एक ट्रांसमिशन लाइन में ये पावर फ्लो लोड फ्लो एनालिसिस से क्या पता लगता है, बता सकते हैं? लोड फ्लो एनालिसिस से क्या पता लगता है? हाँ भाई, लास्ट माइक दो सर, आप दोनों बीच में आप ही आजू बाजू विपिन माइक देखा अरे माइक लोड फ्लो एनालिसिस से क्या पता लगता है, क्या पैरामीटर पता लगता है? वो तो बहुत पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना लोड फ्लो एनालिसिस। अरे मैं विपिन यार, अरे विपिन को उठा, विपिन को भारत टुकली को दे दे, टुकली विपिन ये रहा सर विपिन। इससे क्या चीज़ इंजेक्टेड पावर, लोड फ्लो एनालिसिस से इंजेक्टेड पावर PQV डेल्टा पता लगता है। और उसके बाद वंस वी फाइंड द PQV डेल्टा पता होने के बाद में वी कैन फाइंड द लाइन फ्लो आल्सो। बस नंबर 2 पे इंजेक्टेड पावर से 100 मेगावाट है, बस नंबर 3 पे इंजेक्टेड पावर से 20 मेगावाट है। तो 3 और 2 के बीच में कितना पावर फ्लो करेगा, ये पावर फ्लो एनालिसिस पे करते हैं। उसकी बेसिस पे हम पता लगते हैं लाइन में कितनी पावर फ्लो हो रही है। तो दैट वी हैव स्टडीड इन द डिटेल। ऑक्सीजन मेथड, इंट्रोडक्शन मेथड आपने पढ़ा है, उससे फिर आपको ये पता लगेगा कि लाइन नंबर 1 2 3 4 में ये पावर फ्लो हो रही थी। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा आपने लोड फ्लो एनालिसिस दोबारा किया तो क्या, बस नंबर 5 पे आपने 300 मेगावाट का जनरेटर एज्यूम कर लिया। बस नंबर 6 पे ये सेलर था, ये परचेजर था, उसमें आपने लोड एज्यूम कर लिया। फिर पावर फ्लो किया तो हर एक लाइन का आपका पावर फ्लो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन की वजह से लाइन नंबर 1 पे इतनी एक्स्ट्रा मेगावाट फ्लो हुई, लाइन नंबर 2 पे इतनी कोई पावर एक्स्ट्रा फ्लो, लाइन नंबर 2 आपकी पे जो पावर थी उतनी हुई। लाइन नंबर 2 इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। लाइन नंबर 3 पे देखिए पावर कम हो गई, इस पे जा रही थी 0.31 जा रही थी सपोज ए से बी डायरेक्शन में। नाउ डायरेक्शन हैज बिकम B2A, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इन दिस वे इसमें पावर इतना ये, ठीक है कि यार इसे तो डिलीट करनी तो ये हमारा एडिशनल, अब एडिशनल पावर कितना फ्लो हो रही है इसमें पता लग जाएगा हमें। देखिए लाइन फ्लो आर आल्सो शोन इन फिगर दिस। जब हमारा जो हमने लोड फ्लो एनालिसिस किया उसमें इसको एज्यूम नहीं किया अभी, वी हैव नॉट कंसीडर द बस नंबर जनरेशन ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ईयर, उससे में लोड फ्लो स्टडी ये है। फिर जब आपने यहाँ पे और यहाँ पे एज्यूम कर लिया तो लोड फ्लो एनालिसिस ये इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है लाइन, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, अभी हो गई। ओके, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो पता लग जाएगा हर लाइन पे एडिशनल पावर कितनी फ्लो हो रही है। ये लाइन की एडिशनल पावर पता लग गया। उसको समझने की जो है ये डेबिट हो जाए।
This is the line number 1. 14 20 किलोमीटर लेंथ थी। लाइन नंबर 1 20 किलोमीटर लेंथ थी। तो हमने क्या किया? सपोज 1000 रुपीज वी अज्यूम द बड़ी बड़ी अथारे जो बंद करते 100 मेगावाट पर किलोमीटर 100 मेगावाट पर किलोमीटर मतलब 100 मेगावाट अगर 1 किलोमीटर तक फ्लो करेगा तो आपका 1 रुपये लगेगा। अगर 100 रुपये लगेगा, अगर 1 मेगावाट 1 किलोमीटर तक फ्लो करेगा तो 100 रुपीज़ लगेगा। तो रेट उसके अकॉर्डिंगली आपका कितना पावर यूज हुआ ये न्यूटन से 100 रुपीज़ पर मेगावाट आवर मेगावाट किलोमीटर कि हमारे चार्जेस ट्रांसमिशन चार्जेस फिक्स है एंड दीज चार्जेस आर लेविड impartially without any discrimination to either of the generating company। ये गवर्नमेंट जनरेटिंग कंपनी हो या प्राइवेट जनरेटिंग कंपनी हो, सबका ट्रांसमिशन चार्जेस सेम लगेगा, तभी वो कंप्लीट कर पाएंगे। देखना सर तो आपको देखो यहाँ पता लग गया ये 50 किलोमीटर थी 1 रुपीज पर लग रहा था। तो आपका ये लेंथ इनटू द प्राइसेस ट्रांसमिशन लाइन ही हमारा प्राइस था 100 और 500 किलोमीटर लॉन्ग थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर 1 मेगावाट फ्लो हो तो इतना लगेगा, इस पर 1 मेगावाट फ्लो होगा तो इतना लगेगा, इस पर 1 मेगावाट फ्लो होगा तो ये चार्जेस आ गए क्योंकि आपने क्या किया लेंथ को और रेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मेगावाट के लिए चार्जेस आ गए। अब पहले इतना फ्लो हो रहा था इसमें, अब इतना फ्लो हो रहा है तो ये एडिशनल आ गया, एडिशनल फ्लो एडिशनल पावर फ्लो हुई इस लाइन पे तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ये रुपये लगे उसमें करना चाहिए। ऐसे ही इस लाइन पर कुछ नहीं फ्लो हुआ एडिशनल नहीं फ्लो हुआ, इस पर एडिशनल पावर फ्लो कितना हुई ये दिस माइनस दिस तो ये 1 पॉइंट इसका ऐड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई दिस तो ये पावर आ गई। तो इस तरह लाइन नंबर 1 को यूज करने के लिए इतने पैसे, लाइन नंबर 2 को, लाइन नंबर 3 4 5 6 7 टोटल हमारे कितने लगे 2,73,930 रुपीज़। मतलब एक ट्रांजेक्शन बस नंबर 5 से 6 के बीच में 300 मेगावाट को ट्रांसफ़र कराने के लिए जितना ट्रांसमिशन सिस्टम यूज हुआ उससे इतने पैसे लगे। ओके तो ये पैसे लगे। ऐसे ही अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 लिया, जिस तरह ये कैलकुलेट किया है ऐसे ही ट्रांजेक्शन नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस है दोनों में। ट्रांजेक्शन नंबर 1 जैसे किया है मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द लोड फ्लो स्टडी अगेन। पहले लोड फ्लो स्टडी परफॉर्म कर दिया फिर दोबारा से लोड फ्लो स्टडी परफॉर्म कर दिया, या तो कि रिजल्ट ड्रॉप साफ कौन दिया 75 मेगावाट के लिए पावर फ्लो एनालिसिस किया ऐसी पैंट लाइन फ्लो ऐसी पैंट और जब सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए किया तो जैसे इसमें किया था सेम वी आर नॉट डन हियर। तो जो एडिशनल पावर आई है एडिशनल पावर मल्टीप्लाई बाई दिस एडिशनल पावर मल्टीप्लाई बाई दिस तो ये आएगा सेकंड ट्रांजेक्शन। टोटल अमाउंट ट्रांसमिशन सिस्टम विल रिसीव दिस अमाउंट ऑफ द पावर। 2 ट्रांजेक्शन के लिए उसमें इतना पैसा ट्रांसमिशन सिस्टम को मिलेगा। ओके तो यहाँ तक किसी को पूछना इट इज नॉट क्लियर? मतलब क्या हुआ वी हैव टू परफॉर्म लोड फ्लो एनालिसिस अगेन एंड अगेन। एक ट्रांजेक्शन के लिए लोड फ्लो एनालिसिस कर ली विदाउट, पहले तो बेस केस के लिए पावर फ्लो एनालिसिस कर लिया, फिर एक ट्रांजेक्शन के लिए लोड फ्लो एनालिसिस किया उससे हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के प्राइस निकाल लिए, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिया उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम के प्राइस निकाल लिए, नेक्स्ट किया, ऐसा करके हम के ट्रांसमिशन सिस्टम जो जितना यूज करेगा उतना लगेगा। दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन प्राइजेस। नाउ व्हाट अबाउट द लॉसेस? देखिए आपने you have seen in our previous discussion that say generating companies sell their power to the coal company, या generating company sell power to the any other distribution company through the
बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पावर सेल कर दिया। ओके, तो जितने पावर उन्हें उस रेट में पैसा मिल जाएगा जिस रेट का मार्केट क्लियरिंग प्राइस था। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पावर परचेज कर लिया, वट एवर बी द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, उसके बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर पैसा पे कर देगा। बट हु विल टेक केयर ऑफ द लॉसेस? क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस, सपोज देयर आर 10% ट्रांसमिशन लॉसेस, फ्रॉम वेयर दोज विल कम, वो कहाँ से आएंगे? ट्रांसमिशन लॉसेस विल बी शेयर्ड बाई both generating companies as well as the distribution companies. Okay, and it means, say it is shared, for example, 50-50, then it means what is the meaning of this? Generating company will transfer or transport that amount more than whatever loss. Say it is a 50-50, then whatever is there, out of 10% of losses, 5% losses will be shared by the, if the generating company will inject the additional power to the node, whatever the demand, whatever the, जैसा आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में 100 मेगावाट का, सपोज 100 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड वी नो द ट्रांसमिशन लॉसेस आर 10%, तो हम लोग का जनरेटिंग कंपनी 5%, इसका मतलब वो 100 की जगह 105 मेगावाट इंजेक्ट करेंगे। इस पर क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करेंगी? 110 की जगह वो 5 मेगावाट कम लेंगी। दे विल बी, तो उन्हें अपना डिमांड उतना बढ़ा के पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 10% 5% कम मिलने जा रहा है। सो इन दिस वे द लॉसेस आर टेकन केयर ऑफ। इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? Whatever we have described, this is the method, that is the path flow. This is the what is called flow chart. Flow chart. This is the flow chart of calculating the transmission prices. इसमें वही स्टेप्स लिखे हैं जो मैंने जस्ट अभी बोले हैं। इनिशियल रेट से 100 मेगावाट है, फर्स्ट डू द power flow analysis at the normal running condition, then power flow analysis go on, then it is repeated for all the transactions. Okay, so this is there. अच्छा, इन एडिशन टू दैट, देखिए मेरी होगी। सपोज करिए एनी जनरेटिंग कंपनी, उसी पूल कंपनी में सपोज करिए 100 मेगावाट, डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिडिंग के थ्रू ये पता लग गया कि पूल कंपनी इसको पूल पे 100 मेगावाट दे दी, और ये पता लग गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इतना इसी रेशियो में लेंगे, ठीक है। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आया, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पर आपस में डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और जनरेटिंग कंपनी कि भाई कंपनी नंबर 8, कंपनी नेम ए फ्रॉम द गुजरात, इट हैज केम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कंपनी इन पानीपत, that is the distribution company, that this amount of megawatt power will be transferred from one place to another place. Now who will take care of whether transmission system, although they are ready to pay the transportation charges, that is the transmission charges को पे करने के लिए वो रेडी है, लेकिन whether it is transmission system is capable of taking care of this amount of power flow, इतना पावर फ्लो लेने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम कैपेबल है कि नहीं, हु विल टेक केयर ऑफ दिस, मीन्स उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में कंजेशन है या नहीं। जैसे सपोज करिए आप चंडीगढ़ से यहाँ आ रहे हैं, आपके केस में तो अगर कंजेशन आ गया रास्ते में, कंजेशन हो गया तो आपकी बस खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंटिटी ट्रांसमिशन एंड द पावर ट्रांसमिशन। यहाँ रोड पे अगर जाम लग गया तो आपकी बस खड़ी हो जाएगी, लेट पहुँच जाएगी, लेकिन पावर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि लेट पहुँच जाएगी,
पावर उन्होंने 100 मेगावाट भेज दी, आप कहोगे अभी कंजेशन हो रहा है, लाइन में अवेलेबिलिटी नहीं है उतना पावर लेने का, ट्रांसमिशन करने का, तो चलो 15 मिनट बाद पावर ले लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ए पावर सेक्टर। यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? इसको आपको समझ रहे हैं? पावर सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं कर सकते, पावर लेट मिल जाएगी। इट मीन्स कंजेशन इज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। So congestion is not permitted. There can be there should be some method to remove the congestion. Congestion को remove करने के लिए, और या तो कंजेशन करने का कुछ मेथड होना चाहिए या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होना चाहिए फॉर अलाउइंग एनी फॉर परमिटिंग एनी ट्रांजैक्शन। वी हैव टू सी वेदर द ट्रांसमिशन लाइन कैपेबिलिटी इज अवेलेबल और नॉट। दिस नॉट क्लियर नॉट? ट्रांसमिशन लाइन कैपेबिलिटी अवेलेबल है कि नहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए ही हमारा पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेटिव एनर्जी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर, जो हमारा NLDC रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, उनका ये जैसा NLDC का काम है कि हमारे जो अक्रॉस RLDC और पावर द नेशनल लाइन्स आर देयर, वो कंजेशन हो रही है कि नहीं, कंजेशन को रिमूव करना और किसी भी ट्रांजैक्शन को अलाउ करना, ये सब आपका नेशनल लेवल पे NLDC या पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ POSCO विल टेक केयर ऑफ। देन ओनली द एनी ट्रांजैक्शन इज अलाउड। और हर ट्रांजैक्शन का शेड्यूल होता है। देखिए, देयर आर एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, देयर आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मीडियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसा आपने कहा 1 साल पहले आपने डिसाइड कर लिया कि ये जनरेटिंग कंपनी डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इतना पावर सेल करेगा। और मिड टर्म, और देयर कैन बी ए वीकली कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, दैट इज कॉल्ड द टर्म हीट कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने टर्म से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया। बट वी ऑल नो देयर इज ए वन मार्केट दैट इज कॉल्ड द डे हीट मार्केट। जस्ट एक दिन पहले, मतलब कल का पूरा शेड्यूलिंग, कल सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 6:15 पे, 6:30 पे, 6:45 पे कितनी पावर कौन ट्रांसमिट करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये फाइनल हो जाता है एक दिन पहले। दैट इज कॉल्ड द डे हीट मार्केट। और जितने भी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनको एट द टाइम ऑफ हैमर मीन्स एट द फॉल ऑफ द हैमर दे हैव टू परफॉर्म। अगर उन्होंने बीच में सेल परचेज कर दिया मीडियम वाले ने तो ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे उसको वो पावर उतना जनरेशन को इंजेक्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वो पावर देना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस वे द परफॉर्मेंस इज डन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Anything you want to ask? पर मर्जी से तोड़ दो। धीरज कमान देगा। देखिए, ये चीज और करने का कौन सा फ्रीक्वेंसी, देखिए ये आपका डिसाइड हो जाता है डे हीट मार्केट में कौन कितना पावर इंजेक्ट करेगा, कौन कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये आपका डिसाइड हो जाता है। बट
इज इट ऑलवेज फिजिकल? जितना भी आप कर लें, क्या 100% ऐसा होगा जितना पावर सेल करने के लिए कमिट किया है, जितना पावर परचेज करने के लिए कमिट किया है, इंक्लूडिंग द लॉसेस? तो लॉसेस तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसमें 100% सक्सेस होगी। आप इवन आफ्टर टेकिंग ऑल केयर जो 100% सक्सेस हो पाएंगे। मीन्स देयर कैन बी ए अनशेड्यूल्ड पावर। ये तो शेड्यूल्ड पावर हो गई। देयर मे बी दी अनशेड्यूल्ड पावर। अनशेड्यूल्ड पावर मतलब क्या हुआ? सपोज आपने कहा आप 100 मेगावाट पावर कंज्यूम करेंगे, लेकिन आप 100 की जगह 120 या 105 मेगावाट कंज्यूम कर रहे हैं। किसी ने कहा हम 90 मेगावाट पावर इंजेक्ट करेंगे, वो 90 की जगह 80 मेगावाट इंजेक्ट कर रहा है। तो देयर कैन बी ए अनशेड्यूल्ड पावर आल्सो। अनशेड्यूल्ड पावर को हाउ विल बी हैंडल? देयर विल बी दी टू थिंग्स विच आर टेकन केयर ऑफ। अगर मान लो पावर कंज्यूमशन ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? पावर इंजेक्शन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? पूरी नहीं हो पाएगी डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी। हाँ, डिमांड अगर ज़्यादा है और इंजेक्शन कम है तो व्हाट विल हैपन? होगा क्या सिस्टम में? आपने पढ़ा है ना, हमने आपको फर्स्ट यूनिट में लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी तो पढ़ाया है। उससे क्या होता है? अगर डिमांड ज़्यादा है और जनरेशन कम है तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो उस समय अगर फ्रीक्वेंसी कम है और पावर आप जनरेट कम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपको फाइन लगेगा। इसी का मेथड ये आपका 12 रुपये 14 रुपये ये अनशेड्यूल्ड रेट के लिए, अनशेड्यूल्ड के लिए ये जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उस समय आपने पावर जनरेशन कम की तो आपको ये एक्स्ट्रा रेट लगने लगती हो जाएगा। ये तो हो गया कॉमर्शियल एक्टिविटी, आपका एक्स्ट्रा रेट लगेगा क्योंकि आप महंगा कर रहे हैं। दूसरा, टेक्निकली कैसे हैंडल कराएंगे वो आपने लोड फ्रीक्वेंसी में देखा हुआ कि आपको पावर जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। जनरेशन कैसे बढ़ाएंगे? किसी से एडिशनल पावर, कोई भी जनरेटिंग कंपनी होगी उससे अनशेड्यूल्ड एडिशनल पावर लेंगे। अनशेड्यूल्ड पावर लेंगे तो उसके बेसिस पर भी उसको जो पेमेंट करेंगे फ्रॉम देयर मीन्स इवन विदाउट शेड्यूलिंग द ऑपरेटिंग पावर साइड they can take the power from any generating company without the pre-schedule। उनके जो रेट जो उनका शेड्यूलिंग है उसके अलावा एक्स्ट्रा पावर ले लेंगे, उसके लिए रेट देंगे सो दैट द फ्रीक्वेंसी कैन बी मेंटेन एज ए कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। इफ यू अगर आस्क इसको आपको डिटेल में पढ़ना है।